स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताना. यू कैन सी द स्क्रीन बेटा. साध्या, सिया, Yeah. अभी एक फेस्टिवल आने वाला है, शिवरात्रि. यू आर अवेयर सिया? महाशिवरात्रि. No. ओके ओके सिया, यू नो शिवजी, लॉर्ड शिवा. Yeah. ओके, तो महाशिवरात्रि जो होता है ना, दैट इज द वेडिंग डे ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है, Yeah. बहुत सेलिब्रेशन किया जाता है. दोज हु फॉलो लॉर्ड शिवा, तो वो इस दिन फास्टिंग करते हैं. ठीक है, दे ऑब्जर्व फास्ट एंड उसमें मतलब थ्रू आउट डे वो क्या है कि शिव जी को प्रेयर्स करते हैं. शिवलिंग आपको पता है, शिवलिंग जहाँ जल चढ़ाते हैं लोग, यू आर अवेयर ऑफ शिवलिंग? ओके, रहने देते हैं. अभी आप ये समझिए कि महाशिवरात्रि इज अ डे ऑफ मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है, और लॉर्ड शिवा की एटर्नल कॉन्सर्ट कौन है? माँ पार्वती. ओके, तो शिव जी और पार्वती जी का जब वेडिंग होती है, वो डे महाशिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं. इतना क्लियर है सी बेटा? Yeah. ओके, सो शिव जी. ओके, आई एम सॉरी, हमने प्रेयर्स नहीं करी, हम सीधा टॉपिक पर आ गए. आई एम सॉरी, होल्ड ऑन. लेट अस डू प्रेयर्स फर्स्ट. ओके, सो सिया साथ में कहिए. साध्या तो मुझे पता नहीं है कि वो है कि नहीं यहाँ, तो आप मेरे साथ ही बोलिए, जय श्रील प्रभुपाद. से जय श्रील प्रभुपाद. नाउ जस्ट सिंग हरे कृष्णा महामंत्र 3 times with me. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोलो बेटा, बोलो ये आप महामंत्र. Oh, voice is cracking. Okay. Now is my voice okay? I've switched off the camera. Yeah. Now you can hear me? Yeah. Okay. Just try to sing this Mahamantra with me 3 times. Say Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Rama, Hare Hare. Now you sing independently. You sing. I will listen. Okay. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Very nice. Very nice. Okay. Now we'll start. We'll come to the topic of today. So today's topic is, you are aware of Lord Shiva, right? Sia, you are aware of Lord Shiva? Yeah. Yes. Lord Shiva is also known as Neelkanta. Do you know? Lord Shiva is also known as Neelkanta. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Lord Shiva is also known as Neelkanta. Do you know? Sia, do you know? No. Okay, you don't know? All right. Sadhya, you know Neelkanta? शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं. Yes, Mataji. Okay. तो नील क्या होता है? ब्लू. नील मीन्स ब्लू एंड कंठ मीन्स नेक. Okay, the throat or Blue neck. Blue neck. हाँ, so this neck of Lord Shiva is blue. That is why Lord Shiva is known as Neelkant. Now, why the neck of Lord Shiva is blue? That we'll study. Okay. This is representation of churning of the milk ocean by demigods and demons. See, there are 2 kinds of people in this world. According to Bhagavad Gita, chapter 16, there are 2 kinds of people in this world, demigods and demons. Okay, demigods are known as Devta in Hindi. What do you say? Devta.
या उन्हें कहते हैं सुर, सुर। एंड डीमंस आर, यू नो डीमंस, असुर कहते हैं उनको, ओके, असुर। सो डेमीगॉड्स आर दोज पीपल who are devotees of Lord and they follow the principles of religion. And demoniac people are those who do not worship Lord Krishna, they do not follow the principles of religion. Okay, so demigods कौन होते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं और देवता। देवता, वो धर्म का पालन करते हैं। तो जिसको आप नॉर्मल आप लैंग्वेज में कह सकते हो गुड पीपल। देखो दो ही टाइप के पीपल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी थर्ड वैरायटी नहीं होती है। जो डेमिगॉड्स होती है वो भगवान की भक्ति करते हैं और वो भगवान की आज्ञा पालन करते हैं। दे लिसन टू व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज, दे फॉलो द इंजंक्शंस ऑफ द वेदास। और डीमंस कौन होते हैं? दोज हु डू नॉट वर्शिप लॉर्ड कृष्णा एंड दे डू नॉट फॉलो द इंजंक्शंस ऑफ द वेदास। अब इसको आप एग्जाम्पल ऐसे लो कि आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, you will find two categories of children in your class also. Those who follow what teacher says, and that means obedient people, obedient children who follow what teacher says, and the other set of people are those who do not follow what teachers say. They are not obedient to the teachers, right? So in this way, here also just consider that Lord Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, he has laid down certain principles for us. And if we follow the principles, then we are demigods. And if we do not follow the principle, then we are demons. You understand now? You can understand the difference between demigods and demons? All of Yes, you? ma'am. Okay? अभी गणेश आपने ज्वाइन किया बेटा? Yes, ma'am. Okay, हरे कृष्णा, वेलकम बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये अब हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया बिकॉज अभी शिवरात्रि आने वाला ना, तो हम लोग वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाई लॉर्ड शिवा इज नोन एज नीलकंठ। तो ये फर्स्ट टॉपिक ही हमारा शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन वेयर डेमिगॉड्स एंड डीमंस दे आर चर्निंग द मिल्क ओशन। ओके, मिल्क ओशन को क्या कहते हैं? क्षीर सागर। देखो धीरे धीरे ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज करेंटली वी आर टॉकिंग टू बेसिक्स, बट as we move ahead we'll get to know about all this. As of now, just understand that demigods, and I will share it in the other way. हाँ, just hold on, क्योंकि मैं फिर आपको देख के कहूंगी ना। ओके, हरे कृष्णा आरव बेटा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर डेमिगॉड्स और डीमंस ये क्या कर रहे हैं? दे आर चर्निंग द मिल्क ओशन, ठीक है। मिल्क ओशन को क्या कहते हैं? क्षीर सागर। एक्चुअली क्षीर सागर क्या है? जहां विष्णु जी, वहीं पर ही श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप एक आइलैंड है जिसका नाम है श्वेत द्वीप, वहां विष्णु जी रहते हैं। इसके बारे में आगे कभी पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आप ये समझो, यहाँ डीमंस और डेमिगॉड्स दोनों मिल्क ओशन को चर्न कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, जिसको कहते हैं अमृत। और इस कथा को क्या कहते हैं? अमृत मंथन, वेयर दे आर churning the milk ocean in order to obtain the nectar, okay, to become immortal. तो जब वो चर्न करते हैं तो सबसे पहले जो इस ओशन में से सब्सटेंस निकल के आता है वो होता है पॉइजन, विष। पॉइजन को हम संस्कृत में और हिंदी में क्या कहते हैं? विष। तो सबसे पहले क्या निकल के आता है? इसमें से विष निकल के आता है। और फिर क्या होता है? अभी ये तो नेक्टर जो होता है वो बाद में निकल के आता है, बट पहले और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती है। जब हम कभी अमृत मंथन के ऊपर बात करेंगे ना, क्योंकि we'll talk about 10 अवतार, there are 10 primary incarnations, okay, of Lord Krishna. आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं आपने सुना होगा, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ठीक है। तो जब हम इस पे बात करेंगे ना, तब आपको हम इस चर्निंग वाला जो ये पूरा स्टोरी है इसको हम और डिटेल में बताएंगे। बट अभी आप ये समझिए कि डेमिगॉड्स और डीमन क्षीर सागर मिल्क ओशन को चर्न करते हैं और उसमें से सबसे पहले पॉइजन निकल के आती है, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, डेमिगॉड दे अपील टू लॉर्ड श्री कृष्णा, क्योंकि वो ये पॉइजन कैसी होती है, इतनी पॉइजनस होती है कि वो पूरी दुनिया को, पूरा यूनिवर्स को जला दे. दैट इज द पावर ऑफ द पॉइजन. ओके साध्या, यू नीड नॉट copy the slides. I'll give you PDF. You keep these files with you. I'm not going to keep these PDFs with me only. Okay? You can just note down important points. You need not copy the entire slide. Okay, beta? So then demigods, they appeal to Shri Krishna. अभी हमने क्या बात करी, demons तो क्या होते हैं? Demons तो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते, लेकिन डेमिगॉड्स तो मानते हैं. तो अब जब डेमिगॉड्स ने देखा कि इसमें से पॉइजन निकली, तो वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं. फिर श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जस्ट रिक्वेस्ट लॉर्ड शिवा टू ड्रिंक द पॉइजन. ओके, देन डेमिगॉड्स दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा एंड दे रिक्वेस्टेड लॉर्ड शिवा टू सेव देम. वे क्या कहते हैं, प्लीज सेव अस, ओनली यू कैन प्रोटेक्ट अस. ऑलराइट, और इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट लॉर्ड शिवा पॉइजन को कलेक्ट करते हैं और अपने मुंह में ले लेते हैं. अब देखिए, लॉर्ड शिवा इज नॉट ऑर्डिनरी लिविंग सोल. ओके, लॉर्ड शिवा इज नॉट लाइक यू एंड मी. वी आर ordinary living souls, but Lord Shiva is a special soul, empowered soul. Okay, so Lord Shiva collected the poison and took it in his mouth. अब उन्होंने क्या किया, अपने मुंह में पॉइजन ले लिया, लेकिन क्या किया उन्होंने, पॉइजन को स्वॉलो नहीं किया, बट ही हेजिटेटेड टू स्वॉलो इट. व्हाई? बिकॉज लॉर्ड श्री कृष्णा स्टेज इन द हार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा. तो उन्हें लगा कि मेरे हार्ट में तो कृष्णा है, अगर मैं पॉइजन ले लूंगा वो तो नीचे चली जाएगी हार्ट तक. तो इसीलिए उन्होंने पॉइजन को कहां तक लिया, अपने नेक तक लिया, और इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, नीलकंठ. तो उनका थ्रोट जो है वो ब्लू होता है. ठीक है, अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हो, हम सबके हार्ट में भगवान रहते हैं, पता है ये, विष्णु जी रहते हैं हम सबके हार्ट में. ठीक है, तो इसीलिए वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर. और केवल हमारे हार्ट में नहीं, वो एनिमल्स के हार्ट में भी रहते हैं, वो चींटी में भी रहते हैं, वो ट्रीज में भी रहते हैं. अब आप कहोगे अरे माता जी चींटी में तो हार्ट ही नहीं होता, ट्री, तुम तो स्मार्ट बच्चे हो सब, है ना, यू आर अ वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन. यू वुड से माता जी, यू आर सेइंग दैट लॉर्ड रिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ एन ant also, but ant doesn't have heart. So where does Lord reside? In the body of ant. Or where does Lord reside in the body of plants? ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, yes or no? अब हमारी बॉडी में हार्ट का क्या फंक्शन होता है? What does heart do in a human body? Who will tell? Raise your hand. Okay, okay. पहले गणेश आप बताओ बेटा. मैम ब्लड सप्लाई करता है बाकी बॉडी पार्ट्स को. ब्लड सप्लाई करता है. ठीक है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड का, वो हार्ट के ऊपर, हार्ट के पंपिंग मैकेनिज्म के ऊपर, हार्ट की ऑर्गन है उसके लिए. ठीक है, सिया, यू वांट टू से, यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट गणेश सेड? No. ओके, सो दैट मींस जो पूरा, अब देखो, अब ब्लड के थ्रू क्या होता है, हम जो भी फूड खाते हैं तो वो सब हमारे, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो दैट ब्रेक डाउन होके जो सिंपलर फॉर्म में फूड कन्वर्ट होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड, राइट? यस मैम. एंड दैट ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द हार्ट, राइट? इवन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है बॉडी में, जो कि लंग्स के साथ होता है, वो भी ब्लड की, वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है, जो कि हार्ट पंप करता है, राइट? सो एवरीथिंग दैट इज फंक्शनिंग, तो वो उसका पूरा रूट जो मैकेनिज्म है वो कहां से चल रहा है, वो हार्ट से चल रहा है ना? तो यहां पर हार्ट कहने का मतलब ये है, ह्यूमंस में अगर हम देखें, ह्यूमन स्पीशीज या जिन स्पीशीज में हार्ट एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर तो ये चीज क्लियर है कि भगवान इन द एरिया ऑफ हार्ट वहां पर रिसाइड करते हैं. ठीक है,
और अगर बाकी स्पीशीज की बात करें तो वहां पर भी जो भी उनका कोर ऑर्गन है जिससे उनका बॉडी फंक्शन करता है वहां पर भगवान रिसाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज और समझिए, हमारा जो यहाँ हार्ट होता है ना, वहां पर भगवान रिसाइड करते हैं और वहां पर हम रिसाइड करते हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स। ये तो सब जानते हैं, सोल, एवरीबडी नो सोल। हम बात करते हैं सोल, है ना। सो वी आर एक्चुअली नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स। इसके ऊपर भी आप और जानोगे, यू विल अंडरस्टैंड मोर, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट we are spirit souls, we reside within the heart, in the body, and along with us Lord Krishna resides in the form of super soul, परमात्मा। ओके, तो यहां पर जो हमारा हार्ट है उसमें दो सोल्स हो गई, एक तो हम हो गए, we souls, we reside in the heart, and along with us Lord Krishna resides in the form of विष्णु जी। जो वो सुपर सोल है हार्ट में, वो कौन है? वो विष्णु जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें हर एक लिविंग एंटिटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट लॉर्ड रिसाइड्स इन एवरीवन, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरीवन, एवरी लिविंग एंटिटी। ओके, हमें किसी को भी पैर से नहीं टच करना चाहिए। जैसे कई बार हम बैठे होते हैं, हमारा पैर लग गया, our feet should not touch anybody's body. Why? Because Krishna is residing in their hearts. Body is a temple. मंदिर में कौन होता है बताओ? भगवान जी होते हैं। When we go to temple, तो वहां कौन होते हैं? भगवान होते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह deities होते हैं, right? So when Krishna is residing in our hearts, so our body is what? Our body is temple. So we should not touch any other body with our feet. और अगर होता है तो हम उनको ऐसे टच करके ऐसे माथे पे करते हैं, ऐसे सॉरी कह करके। वैसे तो हम उसमें एक वर्स बोलते हैं, पूरा श्लोक आगे विल टेल यू, बट अभी के लिए अगर आपका पैर किसी को टच हो जाए, मान लो अपने छोटे भाई बहन को टच हो जाए, मम्मा पापा को कहीं टच हो जाए, तो आपको उनको ऐसे टच करके ऐसे माथे पे करना है, क्योंकि सबके हार्ट में कौन रह रहे हैं? भगवान रहते हैं। क्लियर है ये? Do you understand? Do you understand this? Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पर लॉर्ड शिवा की अब बात करते हैं। देखिए, लॉर्ड शिवा इज एम्पावर्ड बीइंग, ठीक है। अगर हम उस पॉइजन की बात करें तो ऑर्डिनरी सोल्स के लिए दे कैन नॉट विथस्टैंड दैट पॉइजन, बट बिकॉज लॉर्ड शिवा इज एम्पावर्ड, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, सो ही टुक द पॉइजन। Okay, he took the poison in his mouth, but because Lord Krishna he says that because Lord Krishna resides in my heart, I will not take the poison beyond the throat. So that is why Lord Krishna is known as Neelkant. अब ये वाली बात किसको किसको पता थी? आप ये जानते हो ये? You know, very good. गणेश, very good. आरव, very good. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ही, दिस इज वेरी सीक्रेट, नॉट एवरीबडी नोज दिस। ऑलराइट, सो महाशिवरात्रि के लिए हम ये स्पेशल जो है, बस यही एक स्पेशल पॉइंट आपके लिए आपसे शेयर करने के लिए लाए हैं कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लॉर्ड शिवा के बारे में, बट अभी आज हम इतना ही इसको करेंगे, ठीक है। अभी तक किसी का कुछ क्वेश्चन है इस पर तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, अदरवाइज वी विल मूव ओवर टू द health tips topic that we are currently doing. Any questions? No, ma'am. Okay, so now I am sharing another PPT. आज हम बात करेंगे एक स्टोरी की which is about Suzuki brothers. Okay, ये स्टोरी जो है ये 1908 की है। तो कितने साल पहले? यस, रियल स्टोरी है। ये 1908 की है। अब आज से लेके कितने साल पुरानी हुई बताओ? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025. हाँ, तो 1908. How many years back? Hold on, Sadhya, you will not say. Ganesh and Arav, you will not say. Sia, how many years back? More than 100 years back, right? Yeah. Okay.
To be precise, 117 years back. है ना? अभी 2025 हो रहा है? 117 years. 117 years. Okay. So this story is about Suzuki brothers. They were the owners of a Chinese restaurant. Okay. What they used to do is that whenever customers used to visit them, they used to read their thoughts and expressions. Okay. And the behavior pattern of the customers, just to find out whether they like the food or they didn't like the food, how much they consumed, everything they used to observe. Okay. So the conversation between them that is displayed here on the screen, you can see. First brother says, brother, did you notice that today also very few customers came? They ordered very little food. Then second brother says, yes, their appetite is just like an ant who doesn't eat much. Now the point to understand here is that Suzuki brothers are running a restaurant. So obviously they want to earn more and more, right? And if customers will eat less, so they will not be able to make profits. So that is why, see, the second brother, what is he saying? Their appetite is just like an ant who doesn't eat much. Then first brother says, if this continues, then soon we'll have to close down the restaurant, right? And then the brother says, no, we would soon find out a way wherein people will come in and they will consume food in greater quantity. And the more they eat, the more profit we'll make. This much is clear? Everyone? This much Yes, clear? ma'am. Okay, next. Now, one of the brothers, he had a scientist friend. Okay. Then he went to his scientist friend and discussed with him that, see, my dear friend, this is the problem that we are facing. We are getting very less customers in the restaurant and they are eating in very less quantity. We are not able to make the profit. What do we do? Then that scientist, he gave them a miraculous solution. Okay. He gave them a small bottle with tiny crystals. Small bottle with tiny crystals. And he said that whatever food you serve to your customers now onwards, just put a little amount of these crystals in that food. Okay. And then he said, you will get miraculous results with these crystals. माता जी तो ये पक्का केमिकल होगा हाँ, ताकि ठीक है? भूख ना मिटे और लेते रहे हाँ, perfect. ठीक है? Okay. Up next. This much story is clear, Sia? Okay, great. Arav, clear? Ganesh? Now they followed what their scientist friend had advised them. And by the time it was afternoon, the entire food got finished. And the customers, they were relishing the food. Now there was no other change in the preparation of the food. Okay. The methodology of preparing the food, everything same. Raw material same, spices same, everything same. Procedure same. But customers, they were relishing that food. because of that chemical. Because of that chemical. So that chemical was creating a false taste. Now, before going ahead to understand more about the chemical, we'll try to understand what is the theory behind the feeling of hunger in us. Okay, what is the science behind it? There are two hormones which are involved in managing our hunger. The first one is ghrelin, hormone ghrelin, and another is hormone leptin. Okay, ghrelin and leptin, these are the two hormones in our body which manage our hunger. Okay, so whenever we feel hungry, then empty stomach sends a signal to the brain which initiates the sensation of hunger. Okay, so this, just consider this with respect to traffic light. So ghrelin hormone is kind of green signal for the body that yes, now you are hungry and you take food. Okay, green signal. Now when we feel hungry, then we consume food, right? And as soon as we are done, then brain will relay the message to stop eating because the belly is now full. And the associated hormone is hormone leptin. Okay, so when the stomach is empty, then ghrelin is initiating, giving an indication to the body to eat food. And when we are done, then leptin is
giving an indication to the body that you are done, so no more eating, right? So that is kind of leptin hormone is, you can consider it as initiating the red signal that stop. Okay, this color coding is not his opposite. Okay, actually this red should have been green here. So ghrelin is, you just read what is in this image. Ghrelin is the appetite stimulator. Ghrelin is released from the stomach and when elevated sends a signal to your brain letting you know that you are hungry and it's time to eat. Age, gender, blood glucose and leptin levels can all affect ghrelin levels. Okay, now leptin, how does leptin work? The appetite suppressor leptin, which is stored and secreted by the fat cells, is considered to be the master regulator of the hunger. When you eat a meal, leptin is released from the fat cells and sends a signal to your brain to let you know that you are full and you need to stop eating. Okay, तो ये ट्रैफिक लाइट की तरह हमारा काम करता है. This mechanism is clear with everyone? Okay, good. Sia clear? Arav, Sadhya. Now the chemical which we were talking about, which that scientist gave to his friends, the restaurant owners, that chemical is MSG, monosodium glutamate, right? We talked about it in the last class. Yes, Mataji. Now look at this figure drawing here. What is MSG is doing? MSG is not letting leptin work. MSG is not letting leptin work. That means you will never feel full. You would like to eat more and more and more and more. And what other thing MSG is doing? MSG is activating ghrelin hormone. That you are hungry, you are hungry, you are hungry, you are hungry. So MSG is playing with this whole mechanism which regulates the hunger in the body. तो यहाँ MSG वाला फूड खाने से क्या होगा? और MSG फूड कहाँ मिलता है? देखो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज, फास्ट फूड, पॉपकॉर्न्स, फ्रेंच जो भी मतलब बाहर बना हुआ मिलता है. आई एम नॉट, अब जब घर में आप बना रहे हो तो दैट इज प्योर, that doesn't have MSG, but everything that you are getting from outside, fast food that you are getting from outside. हाँ बेटा साध्या बोलो. माताजी, MSG केमिकल क्या आइसक्रीम्स में भी प्रेजेंट होते हैं? आइसक्रीम में एक और केमिकल है, MSG भी होगा, बट उसका मुझे अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. We'll talk about आइसक्रीम, केक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, फूड ड्रिंक्स नेक्स्ट टाइम. उसमें एक और केमिकल है, वो भी बड़ा डेंजरस केमिकल है, MSG की तरह. मेरे को तो बड़ा मन करता है आइसक्रीम खाने का. मैम मैं अभी तक खा रही हूँ. कोई बात नहीं बेटा, उसमें भी बहुत डेंजरस केमिकल है. वील टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीक. ठीक है, आप जो भी चीज लो घर पे बना करके लो. ट्राई नॉट टू ईट आउट, क्योंकि उसमें जो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाते हैं हम घर पे, वो हाँ वो ठीक है, वो कर लो. ठीक है ना बेटा, वो ध्यान रखो. अब यहाँ पर क्या है देखो, MSG ने क्या किया, हमारा पूरा मैकेनिज्म को इफेक्ट किया. सो MSG ग्रेलिन हार्मोन को तो स्टिमुलेट कर ही रही है, लेकिन साथ में लेप्टिन के रिलीज को रोक रही है ना. तो इसीलिए अगर हम MSG वाला फूड खाएंगे तो क्या होगा? वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड, वी विल कीप ऑन ईटिंग. तो स्विच ऑफ नहीं है हमारा फूड इनटेक का, स्विच ऑफ नहीं होगा, स्विच ऑन ही रहेगा. एंड डू यू फाइंड सर्टेन पीपल, आप अगर आप किसी को जानते हो जो कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते आए हैं, उनको आप आज भी देखोगे कि हर थोड़ी देर में उनको भूख लगती है. ऐसा कोई है, आप किसी को जानते हो जो हर थोड़ी देर में कहते हैं भूख लगी है, कुछ खाना है, चलो चिप्स खा लेते हैं, अभी फ्राइज खा लेते हैं, अभी वेफर्स खा लेते हैं? होते हैं ना ऐसे लोग. अब क्यों है वो? बिकॉज वो फास्ट फूड आइटम्स इतना कंज्यूम कर लिया है, वो केमिकल जो है, हमारा जो हार्मोन का जो बैलेंस है, हार्मोन की जो वर्किंग है विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग आवर हंगर, दैट इज इम्पैक्टेड. तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये परमानेंटली उसको स्विच ऑफ कर देगा लेप्टिन को. ये ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है, आप ये समझो. अब अगर हम प्रोलॉन्ग, होल्ड ऑन बेटा, अगर हम प्रोलॉन्ग यूज करेंगे MSG फूड्स का, प्रोलॉन्ग वे में हम फास्ट फूड आइटम्स खाएंगे, जंक खाएंगे, तो क्या होगा? ये जो है हमारा ये मैकेनिज्म जो है ये परमानेंटली शट डाउन कर देगा. ठीक है, बोलो साध्या बेटा.
मैम आपने बोला कि लेप्टिन हमें कोई सिग्नल नहीं देता जब एमएसजी होता है फूड में, तो कोई तो लिमिट होती होगी। हमारी भूख मिट गई और उस फूड में एमएसजी है, तो कोई तो लिमिट होती होगी कि हम अब भूख मिट गया, अब और नहीं खाना हमें। देखो हमारा जो स्टमक होता है ना, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो हमारा एक टाइम का मील होता है ना, उसका मेरे ख्याल से 3 या 4 टाइम्स अकोमोडेट कर सकता है स्टमक। ठीक है, हमारा 1 टाइम का जो एक मील होता है उसको ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स, अभी मुझे ध्यान नहीं है, मैं इसको चेक करके बताऊंगी। आई थिंक 3 टाइम्स तो है ही, डबल से तो ज्यादा है, दैट्स फॉर श्योर। वो उतना अकोमोडेट कर लेता है, तो आप खाते जाओगे, स्टमक उसको करता जाएगा अकोमोडेट। लेकिन उसके बाद आपको ब्लोटिंग होगी, आपको स्टमक पेन होगी, स्टमक अपसेट होगा, तो फिर हम रुक जाएंगे खाना। फिर आप रुक जाओगे। पेनक्रियाज पे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। पेनक्रियाज क्या करती है? पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है। जब भी हमें भूख लगती है तो पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है, और वो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को मैनेज करता है बॉडी में, सो दैट उस ग्लूकोज का अमाउंट बढ़े ना, है ना। और जब पेनक्रियाज को आप बाकी ऑर्गन्स पे भी आप ओवरवर्क कराओगे ये सब खा करके, तो क्या होगा? अब क्या होता है, जब हम ओवरवर्क कर देते हैं, मान लो कि आपकी कैपेसिटी 2 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ने की है, एग्जाम्पल, आपको जबरदस्ती बोला जाए 5 घंटे पढ़ो, तो क्या होगा? यू कैन फॉल इल ऑल्सो, है ना। तो उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं? दे गेट टायर्ड, दे हैव टू ओवरवर्क टू डाइजेस्ट दैट फूड। एक तो वो फूड गंदा है, डाइजेशन के लिए भी उसको ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, प्लस आप ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, तो क्या होगा? वी आर एक्सप्लॉइटिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और हम आगे जाकर के, इसीलिए क्या होता है कि आप देखो लॉन्ग टर्म में, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म, इतना लॉन्ग टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी आप देखो, शॉर्ट टर्म में तो आप देखोगे आपको पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी, वॉमिट हो सकती है, स्टमक अपसेट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है? डायबिटीज होती है, हार्ट का डिजीजेस होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसे होता है ना, आप देखते हो ना आजकल 30s में, अपने मिडिल एजेस में भी लोगों को 30s में 40s में ये सब प्रॉब्लम्स होती है, जो कि पहले इतना जल्दी नहीं होती थी। उसका रीजन क्या है? उसका ये सब जंक फूड है, एंड वी आर स्पॉइलिंग द ऑल केमिकल मैकेनिज्म। जो भी केमिकल का जो एक कोऑर्डिनेशन है बॉडी में, हम उसको खराब कर रहे हैं ये सब खा करके। यू अंडरस्टैंड? सिया, यू अंडरस्टूड बेटा? आई एम यूजिंग मोर हिंदी टुडे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सिया, ओके। So we should not be victimized by such companies who are playing with the whole biological mechanism of the body. We should not be victimized. Now last time we also discussed that ये जो MSG होता है ये नोस्ट्रिल्स के थ्रू भी एंटर करता है बॉडी में, है ना। आप मैकडॉनल्ड्स के बाहर निकलते खुशबू आती है, वाओ मुझे भूख लगी, आई शुड ईट समथिंग। वो एरोमा कहाँ से आ रहा है? That aroma is coming from MSG, this chemical. क्योंकि ये add this chemical to soil, to mud. You will like to eat mud also. See how dangerous this chemical is. So that means whatever quality stuff people are creating, if in its original form it is not tasty, but with MSG they are creating false taste, and you would crave for those items more and more. And long term, as we discussed that, they are very harmful. Such chemicals, such things, they are very harmful. So that is why whatever food you want to eat, in fact, जो packaged food होते हैं, they are also look for the ingredients. Nowadays, they are using some code words for ingredients. They will not directly write that it is MSG. They might use some international codes. Go to Google, search for those codes. Then you will actually get to know what those contents are in that specific food item. एक काम करोगे नेक्स्ट क्लास के लिए, आप कोई भी एक जंक फूड जो आपके पास अगर घर में, आई एम श्योर कि आप लोग चिप्स, वेफर्स, कुछ ना कुछ तो ये सब खाते होगे, जो कि नहीं खाना चाहिए, बट आप क्या करो, पॉपकॉर्न्स खाए। हाँ, तो आप कोई भी एक फूड आइटम उठाओ, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, और उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई कोड्स हैं, look for those codes on Google and share it in the group. That Mataji, I checked the contents of Oreo biscuits. These are the contents. This is what they are. I understood that this is what they are. Similarly, other person, I took the Lay's chips and I looked for the ingredients. These are the ingredients. This is what they mean.
Can you do that, this exercise, before next week? Do you have time to do that? You have exams, Sadhya? So Sadhya will do it after exams. Ganesh, माता you जी have मैं exams? एग्जाम आपके भी एग्जाम्स है आरव? यस माता जी और गणेश, you also have exams? Yes, ma'am. Yes, Okay, Mataji. So once your exams are done, this is your exercise. You will do. Now, if I tell you now that don't eat junk during your exams, that you will not listen. है ना? You listen or you will not listen? Ma'am, I will listen. Very good. Who else will not take junk? See, I tell you another thing. Very important thing. हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन सेल्स, देखो हर सेल्स, आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है किसी ने अभी स्कूल में? हैव यू स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल? अभी नहीं पढ़ा है, बड़ी क्लास में पढ़ोगे. हर सेल का अपना मेमोरी होता है, ठीक है? हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सब सेल्स का मेमोरी होता है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, आई विजिट अ गार्डन एवरी डे, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. ओके, डेली आई सी साध्या कमिंग फॉर द वॉक, or I see Sia coming for the walk. So gradually, you know, daily when I see both of them, it will be registered in the memory of my mind that yes, these two girls, you know, they come every day, they come for morning walk. So maybe after some time, maybe मैं shift हो जाती हूँ वहां से, I go and start living somewhere else. But one day I go to some, you know, mall for shopping and I see both of them. Then मुझे याद रहेगा मेमोरी में कि अरे ये तो these are those girls who used to come for the morning walk. ऐसा होता है कई बार, आप किसी को देखते हो और बाद में आपको ध्यान में आता है कि हाँ मैंने कहीं देखा है ना? तो ये सब कहाँ पर स्टोर्ड है? ब्रेन सेल्स, ठीक है? अब फूड की बात करें, आपने कभी भी लाइफ में जंक नहीं खाया है. यू हैव नेवर हैड फ्रेंच फ्राइज फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, बट आप एक दिन मैकडोनल्ड्स गए, यू हैड फ्रेंच फ्राइज, यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो वो जो एक्सपीरियंस है आपके सेल्स में स्टोर हो गया. अब नेक्स्ट टाइम जब आप मैकडोनल्ड्स जाएंगे, आपको पता है कि मैंने ये खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. यू विल अगेन गो एंड, एक तो MSG का एरोमा प्लस योर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ फॉल्स टेस्ट, सो यू विल गो एंड ईट फ्राइज अगेन, फ्रेंच फ्राइज अगेन ओवर देयर. सो ग्रेजुअली क्या है, ये आपके ब्रेन में रजिस्टर हो गया. ब्रेन को उसने टेम कर दिया, MSG ने ब्रेन को टेम कर दिया ये खाने के लिए. अब आप कहोगे कि अब छुड़ाएं कैसे ये आदत, है ना? अब हम जंक का तो हैबिट हमें पड़ा है, वी हैव बीन ईटिंग जंक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. हाउ टू अनलर्न दैट थिंग, राइट? अनलर्न के लिए क्या करना होगा? देखो, साइंटिफिकली कोई भी हैबिट अगर हम 3 वीक्स तक फॉलो करते हैं तो हम उसको परसिस्टेंट वे में आगे फॉलो कर सकते हैं. ओके, and how would you control your mind so that it doesn't get carried away with these things? That is through intelligence. So why we are sharing all these things with you, beta? आपको सबको पता है ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन उसके पीछे थ्योरी क्या है? That you should understand. What is the mechanism that such chemicals are following in our body? How they are hampering our biological cycle. When you understand these things, when you get convinced, then it will be easy for you to take decisions and to reject such things, right? Because then you have the right knowledge. आप एग्जाम्पल देखो, like fire. आपको पता है कि अगर आग के अंदर हम फिंगर डालेंगे हाथ जल जाएगा. पता है कि नहीं पता है? पता है ना? आप फिर भी मैं बोलूंगी नहीं आप उसमें फिंगर डालो, आप डालोगे आग में? नहीं, आप कहोगे नहीं माता जी, it will get burnt. No, right? Because that decision is based on the knowledge. It has the backing of the right knowledge. So that right knowledge about food we are trying to give through these sessions, so that when you look at these things, you don't get tempted because you understand that these things are not good. Yes, Sia beta? If you add MSG to fruit or vegetable, is that a benefit? If you add MSG, then To fruit or vegetables, is that a benefit, or does that just like no, they make are it? not benefit. Those are not beneficial. Did you study somewhere? No. They are not beneficial, beta. They are creating false taste. They are hampering the
chemical cycle, the hormonal cycle in our body. This is the propaganda of big companies, that they are using such chemicals so that we get tempted to eat more and more. And they are going to, and they can make their profits. You understood, Sia? Yeah. See, chemicals are never, देखो, जो भी चीज natural है ना, whatever is natural, edible food which is natural, only that is good. Edible food, obviously, first of all, that thing has to be edible. That is why we can eat it. Plus, it should be natural. That means minimal chemical intervention. Not only in preparing it in the kitchen, but also when it is being grown in the fields. When there is minimal intervention of chemicals, then that thing, that edible thing is pure. Otherwise, chemicals will have some impact in our bodies. Okay? Sia, is it clear, beta? Yes. Okay. Yes, Sadhya, beta. Mataji, in MSG, no, Mataji, in fruits and vegetables, is MSG present? नहीं बेटा, fruits और vegetables में fertilizers है which are not good, pesticides है which is not good. When the food is grown, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं. You have studied cash crops and staple crops. Cash और staple क्या बोलते हैं उसको? Cash crops and food crops. Cash crops and food crops. किसने पढ़ा स्कूल में? फूड क्रॉप आपने पढ़ा है बेटा? याद है गणेश क्या होती है ये? नहीं, याद नहीं है मैम, पढ़ा था. ठीक है, अब देखो फूड क्रॉप क्या होती है? जो बेसिक नेसेसिटीज जो फूड की होती है, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, इस टाइप के जो फूड हो गया, जो कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो जो क्रॉप्स होती है, दोज आर फूड क्रॉप्स. कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्या होता है? मनी. तो कॉफी, टी, कॉफी और टी, इस टाइप की जो क्रॉप्स होती है, ये क्या होती है? कैश क्रॉप्स होती है. आपको कॉफी और टी की जरूरत नहीं है. डू यू नीड टी और कॉफी टू सस्टेन? बट यू नीड राइस एंड व्हीट टू सस्टेन, बिकॉज दैट इज द बेसिक फूड that we have to eat for sustenance. But do you need coffee and tea to sustain yourself? No. But why cash crops are sown? Why they are grown? Because one can earn a lot of money from selling them, right? And because of that, what is happening? The land, which actually should have been used for food crops, for the staple food, it is being used for cash crops. Now, what is happening due to that? I will explain. Wait. ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है? क्योंकि साध्या ने केमिकल्स की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए. यू आर एबल टू सी द पेंट स्क्रीन, ठीक है? आर यू एबल टू सी? कोई बता दो मुझे, दिख रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है. एक है फूड क्रॉप्स, ये है कैश क्रॉप्स, ठीक है? These are grown for dollar, for money. यहां पर एग्जाम्पल आएगा जैसे टी या कॉफी, और भी है जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूं, आई एम शेयरिंग. यहां पर व्हीट और राइस ले लो, ठीक है? तो ये जो है, these are absolutely required for sustenance, okay? But these are grown for money, not absolute requirement for sustenance, right? Now you have a land where you were earlier growing food crops and it was fulfilling the requirement, okay? But now you came to know that these crops will give me more money. So what you do is, you have divided this land and started growing cash crops here, okay? But this requirement is not decreased, right? Food requirement remains the same. We are taking an example where food requirement is the same, but now the land is less, right? Why? Because the other land is being used for cash crops. So what will you do? How will you grow? How to get more yield? You need to produce more grains from lesser land, lesser field, right? This much you understand? Do you understand this? Or is it tough? Okay, Sia could understand. Ganesh, you understood better?
Yes, okay, good. Arav, you understood? माता जी। तो अब Yes. आपके पास जमीन कम हो गई, आपको अनाज तो उतना ही उगाना है, ग्रेन्स आपको उतना ही चाहिए, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, विच आर एसेंशियली व्हाट, केमिकल्स। या फिर ये लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाते हैं, हाइब्रिड फूड, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ फूड, जिसमें क्या होगा, जो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बड़ा होगा, जिसमें कि एक लिमिटेड क्रॉप्स में ही रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। यू अंडरस्टूड? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, अच्छा और दूसरी चीज क्या, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ताकि पेस्ट अगर क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे, तो अगर एक क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा तो सारी क्रॉप्स तो साथ साथ ही है ना। अगर पेस्ट किसी एक क्रॉप में लगेगा तो सारी क्रॉप्स जुड़ी है, सब फील्ड खराब हो जाएगी, तो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। जबकि देयर आर नेचुरल वेज आल्सो टू गेट रिड ऑफ पेस्ट्स, बट दे आर यूजिंग केमिकल्स फॉर दैट, insecticides, pesticides, fertilizers. So these are the chemicals actually which you find in the raw food and raw fruits and vegetables. Okay साथिया, और जो MSG है वो कुकिंग के टाइम लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स वाला जब होती है ना ये वेजिटेबल्स, पानी लो, उसमें थोड़ा विनेगर डालो, उसमें सब्जियों को सोक करके रखो, थोड़ी देर के लिए रखो सब्जियों को, फ्रूट्स को, उसके बाद उसको आप कंज्यूम करो तो वो निकल जाता है, ठीक है। या बेकिंग सोडा, पानी में बेकिंग सोडा डाल करके उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखो, तो वो भी इसको रिमूव करता है। अब जो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया उसको तो हम कैसे निकालेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल होगा वो सब निकल जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब आप बताइए, सबको समझ में आया? बहुत टफ तो नहीं है? आपको ऐसा तो नहीं लगा कि संडे क्लासेस में तो पता नहीं कौन सी पढ़ाई हो रही है, स्कूल जैसा तो नहीं लग रहा? नहीं तो अगली बार हम कुछ फन करेंगे, अभी पढ़ाई नहीं करेंगे अगली बार। बताओ, कुछ डिफरेंट करना है तो। माता जी स्टोरी करनी है कोई? यस। गणेश क्या करना है नेक्स्ट टाइम? पर पहले आज का बताओ, सब समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा कुछ? नहीं मैम। आपको समझ आया आरव बेटा? Yes, माता जी, understood. सिया, Yeah. you understood बेटा? Okay. ये जो दोनों slides है ना, I'm going to share the PDFs of the slides in the group. Okay? You can take a printout or you can save it for your ready reference whenever you would like to read. माता जी, जो आपने वो शिवजी वाली स्टोरी सुनाई थी, जब फर्स्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया था और डेंजरस पॉइजन, उसके बाद क्या हुआ था? जब उसने बर्न कर दिया था पूरे वर्ल्ड को। बर्न नहीं किया था, वो इतना पावरफुल था कि बर्न कर सकता था ऐसा, इसलिए शिव जी ने क्या है, क्योंकि वो स्पेशल सोल है तो उन्होंने अपने मुंह में ले लिया। बर्न नहीं किया था, वो बर्न कर सकता था, इतना पोटेंशियल था, समझे? और उसके बाद तो और बहुत सारी चीजें हुई थी, समुद्र मंथन। जब हम कूर्मा अवतार की स्टोरी करेंगे ना तब इसको डिटेल में करेंगे। ओके? आपने बर्ड इन द केज सुना है स्टोरी, बर्ड इन द केज? माता जी सुननी तो लगी। हम इसको करेंगे स्टोरी को नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो बताऊंगी। आई विल टेल यू दैट स्टोरी विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। माता जी, हमारा ये फूड वाला टॉपिक कब खत्म होगा? फूड वाला टॉपिक बेटा अभी अगली बार मैं थोड़ा सा वो लेकर के आऊंगी, आइसक्रीम्स और पेस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है, और केक्स के ऊपर। अभी मुझे लग रहा है 2-3 क्लास लगेगी। अभी बोर हो गए क्या? नो माता जी, केमिकल्स के बारे में पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि देखो फूड का टॉपिक हमने क्यों लिया सबसे पहले, क्योंकि देखो जब आपकी हेल्थ ठीक होगी तभी तो सब कुछ आप अच्छे से कर पाओगे ना बेटा। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते व्हाट वी शुड ईट एंड व्हाट वी शुड नॉट ईट। मैं पहले क्या सोचती थी कि स्ट्रीट वेंडर से कुछ ले लो तो वो खराब होता है, बट पैकेट में सब अच्छा होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पैकेट में अगर हम इंग्रेडिएंट्स पढ़े कितनी चीजें खराब है, तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपना हेल्थ को कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो मे बी 2 or 3 weeks it will take. What we can do is next time I will tell you a story. 15 minutes we'll take to learn to know that story और उसका जो भी टेक अवे है, then we'll continue with the topic of another chemical which is used in ice creams, pastries. Now finally if you have any questions, otherwise we close the call. और आपने एक स्टोरी बतानी थी आज की, हाउ वियतनाम एनिमल्स गेट सिक। तो वियतनाम वाली जो स्टोरी है वो नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक हम बर्ड इन द केज और ये करेंगे, जो मैंने आपको पेस्ट्रीज और आइसक्रीम वाला वो करेंगे पहले, ठीक है ना? तो क्लोज करें क्लास आज की? यस माता जी। हरे कृष्ण माता तो जी। आप ना
हरे कृष्णा, सब हरे अपना ध्यान, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, टेक केयर, हम्म, हरे कृष्णा बेटा, ध्यान हरे रखिए कृष्णा। अपना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गणेश।